السلام علیکم ویورز آج ایک اور بہت ہی زبردست اور خوبصورت قسم کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سننے کی استدعا کر رہا ہوں، ضرور سن لیجیے گا۔ سنو گے تو بار بار سننے کو دل کرے گا، اتنی زبردست انفارمیٹیو ہے، اتنی زبردست انفارمیشن ہے اس میں۔ حافظ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت کی صفات اور خوبیوں کو سامنے رکھ کر بطور ترغیب اور شوق دلانے کے جنت کی کچھ اس طرح سے عکس بندی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسے عظیم و شان گھر کی عظمت کی کیا پوچھنے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے دست مبارک سے بنایا ہو اور اپنے محبوبان اور اشاق کے مستقر ٹھہرایا ہو، اس کو اپنی رحمت، شان اور رضامندی سے پر کیا ہو، اس کی نعمتوں کو عظیم کامیابی قرار دیا ہو، اس کی بادشاہی کو ملک کبیر بنایا ہو، اس میں خوبیوں کو کامل طور پر مخصوص کر دیا ہو، اس کو ہر قسم کے عیب، آفت اور نقصان سے پاک کر دیا ہو۔ اگر تو اس کی زمین اور خاک کا پوچھے تو وہ کستوری اور زعفران کی ہے، اگر تو اس کی چھت کا پوچھے تو عرش رحمان کی ہے، اگر تو اس کی لپائی کے گارا کا پوچھے تو وہ خوشبودار کستوری کا ہے، اگر تو اس کی بجری کا پوچھے تو وہ لولو اور جواہر کی ہے، اگر تو اس کی عمارت کا پوچھے تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی ہے، اگر تو اس کے درختوں کا پوچھے تو ان میں سے ہر ایک درخت کا تنہ سونے اور چاندی کا ہے، نہ کہ لکڑی کا، اگر تو اس کے پل کا پوچھے تو مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، جاگ سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، اگر تو ان کے پتوں کا پوچھے تو ایک باریک اور نفیس پوشاکوں سے بھی انتہا درجہ کے حسین ہیں، اگر تو جنت کی نہروں کا پوچھے تو کچھ نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدستور قائم ہے، اور کچھ نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے خوب لذیذ ہوں گی، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہیں، اگر تو ان کے طعام کا پوچھے تو وہ میوے ہیں جو ان سے چاہیں پسند کر لیں گے، اور گوشت ہوگا اڑتے جانوروں کا جس قسم کا جی چاہے گا، اگر تو ان کے پینے کی چیزوں کا پوچھے تو وہ تسنیم، زنجبیل اور کفور پئیں گے، اور اگر تو ان کے برتنوں کا پوچھے تو وہ سونے چاندی کے ہوں گے، شیشے کی طرح صاف کہ اندر کی چیز باہر نظر آئے گی، اگر تو جنت کے دروازوں کی چوڑائی کا پوچھے تو دروازے کے دو پٹھوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اس پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ رش کی وجہ سے بھیڑ لگی ہوگی، اگر تو جنت کے درختوں کی ہوا چلنے کا پوچھے تو وہ اپنے سننے والوں کو مسحور کر دے گی، اگر تو ان کے سائے کا پوچھے تو ان میں سے ایک ہی درخت ایسا ہے کہ تیز ترین گھڑ سوار 100 سال تک اس کے سایہ میں چلتا رہے تب بھی اس کو طوے نہ کر سکے، اگر تو جنت کی چوڑائی اور کشادگی کا پوچھے تو سب سے کم درجے کا جنتی اپنی مملکت، تخت، محلات اور باغات میں 2000 سال کی مسافت تک چلتا رہے، اگر تو جنت کے خیموں اور قبوں کا پوچھے تو ان میں ہر ایک خیمہ ایسے خولدار موتی کا بنا ہوا ہے، تمام خیموں میں مجموعی طور پر اس کی لمبائی 60 میل ہے، اگر تو اس کے بالا خانوں اور کوٹھیوں کا پوچھے تو یہ ایسے بالا خانے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بنائے گئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اگر تو ان محلات کی بلندیوں کا سوال کرے تو طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھ لے، یا افق کے آسمان میں غروب ہونے والے ستارے کو دیکھ لے جو مشکل سے نظر آتا ہے، اگر تو اہل جنت کے لباس کا پوچھے تو وہ ریشم اور سونے کا ہوگا، اگر تو اس کے بچھونوں کا پوچھے تو ان کا استر موٹے ریشم کا ہے جو بڑے سلیقے سے بچھایا گیا ہے، اگر تو ان کی مصہریوں کا پوچھے تو وہ ایسے تخت ہیں جس پر سونے کے نگینوں سے شاہی مصہریوں کی چھت بنی ہوئی ہے، نہ تو ان میں کوئی
बटन है ना सुराख। अगर तू अहले जन्नत की उम्र का पूछे तो वो हजरत आदम अबुल बशर अलैहिस्सलाम की शक्ल पर 33 साल की उम्र में होंगे। अगर तू जन्नत वालों के चेहरों का और उनके हुस्न का पूछे तो वो चांद शक्ल होंगे। अगर तू उनके गीत का पूछे तो उनकी बीवियां हुरैन खुश अलहानी करेंगी और उनसे ज्यादा खूबसूरत आवाज फरिश्तों और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की होगी और उन सब से बुलंद तर रब्बुल आलमीन के खिताब का हुस्न होगा। अगर तू जन्नत वालों की सवारियों का पूछे जिन पर वो सवार होकर एक दूसरे की मुलाकात और जियारतें करेंगे तो वो नहायत शान व शौकत और आला दर्जा की सवारियां होंगी जिनको अल्लाह ताला ने अपनी मंशा से जिस चीज से चाह पैदा किया है। ये जन्नत वाले उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे जन्नतों की सैर करेंगे। अगर तू उनके जेवर और लिबास की जेब व जीनत का पूछे तो कंगन तो सोने और आला दर्जे के मोतियों के होंगे और सरों पर शाही ताज होंगे। अगर तू अहले जन्नत के छोकरों का पूछे तो वो हमेशा रहने वाले ऐसे लड़के होंगे गोया कि वो गायत हुस्न जमाल में हिफाजत से रखे हुए मोती हैं। अगर तू उनकी दुल्हनों और बीवियों का पूछे तो वो नुख्वास्तवा नौजवान औरतें होंगी हम उम्र जिनके अज़ाम में आब शबाब गर्दश करता होगा। गुलाब और सेब जैसे रुखसार होंगे। मंसूम मोतियों की शिकल दांतों में समा रखी होगी। कमर नरम और नाजुक होगी। जब चेहरे का जलवा दिखाए तो सूरज उसके मुखड़ी की रानाइयों में लहलहाता हो। जब मुस्कुराए तो बिजली उसके दांतों से चमक उठे। जब तेरा उसकी शिफ्तगी से आमना सामना हो तो वो खूबसूरत सितारों के मुकाबला में तो जी में आए कह सकता है। जब वो जनती से कलाम करेगी तो दो महबूबों के बाहमी गुफ्तगू के मुतालिक क्या गुमान करता है। जनती इस जन्नत की दुल्हन के सेहन रुखसार में देखेगा जैसे साफ शफाफ आईना में किसी चीज को देखा जाता है। गोश्त के अंदर से हड्डी के अंदर का हिस्सा भी नजर आएगा। ना तो उसके सामने उसकी जिल्द पर्दा बनेगी ना उसकी हड्डी और ना ही उसकी पोशाकें। अगर जन्नत की ये औरत जमीन पर झांक ले तो जमीन व आसमान की फिजा को खुशबू से मुअत्तर कर दे और तमाम मखलूक़ात की ज़ुबानों को कलमा तकबीर और तस्बीह पुकारने पर बेसाख्ता मजबूर कर दे और उसकी वजह से दुनिया के दोनों किनारे सज जाएं और अपने गैर के देखने से तमाम आंखों को बंद करा दे। और हाँ सूरज की रोशनी को ऐसे मांद कर दे जिस तरह से सूरज सितारों की रोशनी को मांद कर देता है और रोए जमीन पर बसने वाले सब अल हय्यो व कयूम पर ईमान ले आए। इसके सर का दुपट्टा दुनिया और उसकी सब चीज़ों से ज्यादा कीमती है और उससे सोहबत तमाम ख्वाहिशात से ज्यादा तड़पाने वाली है। जितना जमानों पर जमाने बीतते जाएंगे वो हुस्न जमाल में तरक्की करती चली जाएगी। तवील जमाना गुजरने पर भी उसकी मोहब्बत और मिलाप में इजाफा होता चला जाएगा। वो हमल विलादत हैज व निफास से पाक होगी। नज़ला बलगम पेशाब पखाना और दिगर गंदगियों से भी पाक होगी। उसकी जवानी न जाएगी। उसका लिबास पुराना ना होगा। ना उसके हुस्न की रानाइयाँ ज़ईफ पड़ेंगी। ना उसकी सोहबत की चाशनी से दिल भरेगा। उसकी निगाह नाज व अदा वगैरह बस अपने खामन की तरफ ही रहेगी। इसलिए वो किसी गैर की तमन्ना ना करेगी। ऐसी ही जनती मर्द की निगाह और चाहत उस हूर की तरफ रहेगी और यही उसकी इंतहाई ख्वाहिश होगी। अगर ये इसकी तरफ नजर करे तो उसको खुश कर देगी। अगर हुक्म करे तो तस्लीम करेगी। अगर उससे दूर जाए तो उसकी हिफाजत करेगी। ये इस हूर के साथ साथ रहेगा ख्वाहिशात और पकदामनी के साथ। ये ऐसी है जिसको किसी और इंसान पर जिन ने हाथ तक ना लगाया होगा। जब जनती उस हूर को देखेगा उसका दिल सरूर व लिज्जत दीदार से उछल उछल जाएगा। और जब वो जनती से बात करेगी उसके कानों को बिखरे हुए और मंजूम मोतियों से सजा देगी और जब अपना जलवा दिखाएगी तो महल और बालाखाना को चमका देगी। अगर तू उनके सन का पूछे तो हम उम्र सन शबाब की मुनासिब तरीन उम्र में होंगी। अगर तू उनके हुस्न जमाल का पूछे
तो क्या तूने सूरज और चांद देखा है? अगर तू आंख की सियाही का पूछे तो वो साफ शिफाफ सफेदी में खूबसूरत सियाही है, खूबसूरत गहराई में। अगर तू उनके कदों का पूछे तो कद, तो क्या तूने खूबसूरत टहनियाँ देखी हैं? अगर तू उनके रंग और रूप का पूछे तो गोया कि वो यकूत व मरजान जैसी हैं। अगर तू उनके हुस्न तख्लीक का पूछे तो वो औरतें हैं गोरी रंगत वाली, जिनमें खूबियाँ और खूबसूरतियाँ सब जमा कर दी गई हैं। उनके जमाल ज़ाहिरी व बातनी से संवारा गया है। वो दिलों की बहार हैं, आंखों की ठंडक है। अगर तू उसके साथ ऐशो नशात और मुबाशरत की दिल रुबाई का और वहाँ के मज़ा का पूछे तो वो प्यार करने वाली, खामदों पर मरने वाली, खामदों के हकूक़ को हुस्न असलूब से इसी तरह से अदा करने वाली हैं जिस ज़ौक़ से वो चाहत करेंगे। तुम्हारा इस औरत के मुतालिक क्या ख्याल है जब खामन के सामने मुस्कुराए और अपनी मुस्कुराहट से जन्नत जगमगा डाले? अगर वो एक महल से दूसरे महल में मुंतकिल हो तो ये कहे कि हुस्न का एक सूरज है जो अपने फलक के एक बुर्ज में मुंतकल हुआ है। जब इससे गुफ्तगू की जाएगी तो इस गुफ्तगू के हुस्न पर कुर्बान, अगर वो सीने से लगाएगी तो उसकी लिज्जत मिलाप और मुआनका की क्या इंतहा है। अगर वो सुरीले आवाज से नगमा सराय करेगी तो आंखों और कानों को लुभा देगी। अगर वो मोहब्बत प्यार से मेल जोल करेगी और अपने से मुस्तफीद करेगी तो ऐसी प्यार बड़ी मुवनिस्ता और इस्तिफादा को खुश आमदेद अगर वो बूसो किनार करे तो इसके बोसा से ज्यादा ज्यादा दिल पसंद कोई शे नहीं। अगर इससे मोहब्बत की जाएगी तो इससे ज्यादा लिज्जत और नशात कहीं नहीं होगी। ये तो जन्नत और उसकी हूरों का हाल रहा। अगर तू यौम मजीद का पूछे और परवरदिगार आलम की जियारत और चेहरा का तो उसकी कोई सिफत और शान जाहो जमाल की बिन नहीं आती। ये तो सिर्फ मुशाहिदा से ही ताल्लुक रखती है। इसका बयान दीदार खुदावंदी के बयान में इंशाल्लाह मुलाहिजा फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसको बार बार सुनने की कोशिश करें ताकि दिल में जन्नत जाने का शौक पैदा हो जाए। और यही इस जिंदगी का मकसद है और यही असल कामयाबी है कि इंसान जन्नत में जाने वाला बन जाए और जन्नत की इन अजीम शान नेमतों से हमेशा हमेशा के लिए मुस्तफीद होता रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।